Now we will move on to the second part of this lecture, where I will be describing the chapter and discussing it with you in detail. This part is called the chapter analysis. Now I will read the chapter in its entirety and we will discuss it in detail. Acceptance speech. Your Majesties, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen. यहाँ पर वो जितने ऑडियंस में मेंबर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं और स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनको वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर योर मैजेस्टीज़, योर एक्सीलेंसीज आर अ रेफरेंस फॉर द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस. I stand before you here today to accept on behalf of my mother, Aung San Suu Kyi, this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. Because circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. यहाँ पर उन्होंने पहले अपने आने का पर्पस बताया. Why is he accepting the award on behalf of his mother? And he is declaring the Nobel Peace Prize to be one of the greatest. किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी honor है to receive a Nobel Peace Prize. So that is what he has described here. Firstly, I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name, but in the name of all the people of Burma. She would say that this prize belongs not to her, but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma. Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy. यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि उनकी मदर ना सिर्फ अपने लिए ये प्राइज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, बट वो सारे लोगों के लिए एक एक सिटीज़न बर्मा के लिए कर रही हैं जिन्होंने उनके स्ट्रगल में उनका साथ दिया है. ही ऑल्सो सेज दैट ऑल द पीपल इन द कंट्री दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन अ डेली बेसिस फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर an equal recipient of this prize. Speaking as her son, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized. And no one must underestimate that plight. The plight of those in the countryside and towns living in poverty and destitution, those in prison, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monks, beaten and dishonored. Nor should we forget the many senior and highly respected leaders besides my mother who are all incarcerated. It is on their behalf that I thank you from my heart for this supreme honor. The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded. यहाँ पर उन्होंने एक सन की तरह, एक उनके बेटे की तरह ये एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने पर्सनली उनका डेडिकेशन और सैक्रिफाइस देखा है, बट ना सिर्फ उनका, बट पूरे कंट्री में जो जो लोग इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सब का सफरिंग एक तरीके से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अब विजिबल है. जो लोग गांव से लड़ रहे हैं, जो लोग पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, जो लोग जंगल में भाग गए हैं ताकि उनको टॉर्चर ना किया जाए, वो वहाँ पे मलेरिया से लड़ रहे हैं, या फिर द बुद्धिस्ट मंक्स हैं, वो लोग की लड़ाई, वो सारे लोगों की लड़ाई की एक तरीके से विजय है, क्योंकि आज आखिरकार फाइनली उनको एक रिकग्निशन मिला है एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे. अब ये देखा जाए
कि इस पैराग्राफ में कई वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं समझने के लिए, तो हम लोग गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकग्नाइज्ड। तो प्लाइट का यहाँ मतलब है कंडीशन, जो स्थिति है उस कंट्री के लोगों की, उसका ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगले लाइन में वर्ड्स हैं पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मतलब बहुत ही गरीबी, बहुत ही बुरा सिचुएशन, जहाँ पर कोई नहीं, आप हेल्पलेस फील करते हो, आपको लगता नहीं है कि कोई हमारी मदद कर सकता है। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स। अब यहाँ पर मंक्स का स्पेलिंग है MONKS, पर वो प्रोनाउंस मॉन्क्स नहीं किया जाता है, मंक्स किया जाता है। जो आप बुद्धिस्ट स्वामी वगैरह को देखते हैं उनको ही मंक्स कहा जाता है। रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर हु आर ऑल इनकार्सरेटेड। अब इनकार्सरेटेड का मतलब होता है उनको जेल में भेज दिया गया है। इनकार्सरेटेड मतलब इम्प्रिजन्ड। गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, we must also remember that the lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is part of the much larger struggle worldwide for the emancipation of the human spirit from political tyranny and psychological subjection. The prize, I feel sure, is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be. It is not without reason that today's events in Oslo fall on the International Human Rights Day, celebrated throughout the world. यहाँ पर अलेक्जेंडर एरिस इस बात पर भी ध्यान देना चाह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रगल, जो कि उनकी मदर जिसकी पार्ट हैं, बाय बीइंग एनक्लोज्ड इन अ हेविली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून, वो हाउस अरेस्ट में है, वो किसी से मिल नहीं सकती हैं, उनसे कोई मिलने आ नहीं सकता है, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे स्ट्रगल में वो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, बट उनको साइकोलॉजिकली भी टॉर्चर किया जा रहा है। अब आप इमेजिन करिए, आपको एक बंद कमरे में कंप्लीटली एक प्रिजन गार्ड के साथ रख दिया जाए, जहाँ पे आपकी हर एक एक्टिविटी को कोई ना कोई कंटिन्यूसली उसको चेक कर रहा है, आपको कहीं आना जाना अलाउड नहीं है, एक घर में आप बंद हैं, तो इससे आप पर साइकोलॉजिकल असर भी होगा। तो आपका मेंटल स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है एक पॉलिटिकल टॉर्चर का। तो इस अवार्ड के बल पे उनके बेटे ये कहना चाह रहे हैं कि उनके स्ट्रगल में इससे बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है, और वर्ल्ड ओवर ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ हाउ शी इज़ बीइंग टॉर्चर्ड एंड दिस इज़ हाउ द पीपल ऑफ बर्मा आर सफरिंग, एंड इट इज़ थ्रू दिस अवार्ड दैट दे विल बी गेटिंग द लिबरेशन फ्रॉम सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल टिरनी। अब पॉलिटिकल टिरनी मतलब क्या है? पॉलिटिकल टिरनी मतलब जहाँ पर एक सिंपल रूल है जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, वो जो कह रहे हैं आपको वो मानना है। तो वो इसी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी थी, और उसको ही वो कह रहे हैं कि बिकॉज शी रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज, नाउ द वर्ल्ड ओवर एवरीबडी विल बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। और वो ये भी कह रहे हैं कि आज का प्राइज सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट फॉल्स ऑन द सेम डे एज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जहाँ पर मानव राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड ओवर में। Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee. Just a few days ago, the United Nations passed a unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar's statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention. वो जो चेयरमैन है इस अवार्ड कमिटी के, उनको संबोधित करते हुए यह कह रहे हैं कि उनके चॉइस का, जो उन्होंने ऑंग सान सू ची को चुना इस नोबेल पीस प्राइज़ का के लिए, उसको पूरे वर्ल्ड में इट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड. वाई? बिकॉज इट सीम्स टू बी एन अनबायस्ड डिसीजन. ऑल्सो
बिकॉज कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हवियर पेरेज दे क्यूलर ने एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन, मतलब एक ऐतिहासिक डिसीजन का लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी मदर को जल्दी से जल्दी इस डिटेंशन से रिलीज़ किया जाए। तो एक तरीके से उन्होंने इस बात को मिस्टर चेयरमैन ने इस बात को पूरे वर्ल्ड में एक महत्व दिया। ही हैज़ गिवन इट एन utmost importance so that now his mother will hopefully be released in a quicker manner. Let it never be said by future generations that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates. Through this award, it is also being declared to the world that no matter how much political tyranny or no matter how much unfair practices are taken over in the world, लोग फिर भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और उनको आगे के जनरेशन को इससे ये असर होगा कि वो सेल्फिश नहीं होंगे। उनको ये लगेगा कि नो मैटर व्हाट हैपन्स ही विल स्टिल बी in a situation to fight for his rights, because there is an example like Aung San Suu Kyi, who in her fight received the Nobel Peace Prize. This is a positive reinforcement for the future generation. Let the striving of us all prove Martin Luther King Jr. to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत ही बड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और वो नॉन वायलेंस और पीस के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अगेंस्ट रेसिज्म। बहुत सारे अमेरिकन ब्लैक पीपल थे जिनको राइट्स नहीं थे, उनके इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने अपनी एक लड़ाई जारी की थी और वो उसमें विजयी हुए थे। So the same statement that he made, a historical statement by Martin Luther King Jr., is what Mr. Alexander Aris is saying, that we have through this award proved him right when he made the statement that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war. मतलब जो इंसानियत है वो कभी भी एक पर्टिकुलर इंसान के रेसिज्म या वॉर मेंटालिटी से गाइडेड नहीं है, हमेशा ह्यूमैनिटी की जीत हुई है। लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वॉज नॉट अ मियर ड्रीमर व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस बीइंग मोर प्रेशियस दैन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ वी कैन शो टू द वर्ल्ड दैट नो मैटर how much ever the time passes, important people like Martin Luther King Jr., who had a dream wherein he spoke that हमेशा ही इंसानियत और ब्रदरहुड, भाईचारा और शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी जीवन के, इस दुनिया के किसी भी सबसे बड़े धन से। It is more precious than diamonds or silver or gold, is what Martin Luther King Jr. declared, and which we are still living by. So finally he ended his speech by a very nice statement, let a new age dawn, wherein उनका कहना ये था कि एक नई सुबह की तलाश में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। And he ends the speech with a thank you.